Good morning to my dear students. Krishti sir again to discuss some very basic concepts and some gaps also in collision process. And the more specifically, I'm going to discuss the coefficient of restitution. I've written coefficient of restitution revisited. So let's see what I've written here for you so that you can be very comfortable. So many of you people, many students usually define the coefficient of restitution. कैसे डिफाइन करता हूं बोलो as the ratio of relative velocity after collision to the relative velocity before collision है ना आप बोलते हो velocity of separation by velocity of approach like this in a collision between two bodies. Or more accurately, you might be writing like this, beta. You might be writing like this. V2 minus V1, that's relative velocity with respect to 1, is minus 1 E into U2 minus U1. The relative velocity of same 2 with respect to 1. Minus 1 because the relative velocity of 2, 1 will be reversed in direction with respect to relative velocity of same 2, 1 before collision. Okay? That's what. So what is the coefficient of restitution? What is U1? Velocity of particle 1. 1 means particle 1. If U means before collision. Similarly, U2 क्या होगा बेटा? Velocity of particle 2 before collision. समझ में आ गई कैसे नोमेनक्लेचर जो मैं लिख रहा हूं. So V1 क्या होगा बोलो? V is after. So velocity of the 1 means particle 1 after collision. V2 क्या होगा? Velocity of the particle 2. 2 is particle 2. V means after collision. ध्यान रखना ये नोमेनक्लेचर को इजी हो जाएगा आगे की डिस्कशन. सो अभी प्रॉब्लम किसमें आता है? आप बोले भाई ये तो हमारा हो जाता, आप क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हो? बात तो अवश्य मैं करूंगा क्योंकि आप देखो लाइन ये definition of coefficient of restitution is applicable in one dimensional or hidden collision only. क्या होता है one dimensional collision? The line of motion of individual particles remains same. अगर x डायरेक्शन में मोशन हो रहा, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का दोनों कोलाइड कर रहे हैं, अगर वन डायमेंशनल collision है तो आफ्टर collision also both of them will move along the x axis only, maybe negative or positive, but x axis only. They will not have any y-z component after collision. So this is known as one dimensional collision, and you might be knowing it as a hidden collision as well. अगर हिडन collision है, वन collision है, जो डेफिनेशन आपने दिया इस इक्वेशन 1 जो है परफेक्टली वैलिड है, अब्सोल्यूट नो इशू, परफेक्टली वैलिड, मेरे को कुछ बोलने का नहीं. बट मैं ये लाइन पूछता हूँ, ये जो व्हाट हैपेंस व्हेन द collision is not one dimensional, like oblique collision जब होता है क्या होता है? When the particles deviate from their lines of motion after collision. तो क्या बोले हम भाई, हम ऐसा ये भी हम लोग किए, सेंटर ज्वाइन कर गए मैं स्फेरिकल बॉडी लेके. तो अगर स्फेरिकल बॉडी देगा तब ना सेंटर ज्वाइन करेंगे. तो ऐसे लिखा है what happens when the collision is not one dimension like oblique collision, or when the that means when the particles deviate from their lines of motion after collision. You might have been solving these problems by taking the velocity components along the line joining the centers of spherical bodies and applying the above equation 1 along that line. But अगर spherical body है ही नहीं तो इसी आर्बिट्ररी शेप है, एक एलिप्टिकल बॉडी शेप है, एक रैंडम शेप की बॉडी है, तो फिर क्या करेंगे? कहां से सेंटर ढूंढेंगे भाई? But if the shapes of the bodies are not spherical or these are not, they're just like particles. Particle का कहां से सेंटर कहां ढूंढेंगे? हम देंगे ही नहीं कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में. तो आ गया अभी हमारा नीड, necessity of revisiting the coefficient of restitution. क्या बाबू सही है ना?
ड्यूरिंग ऑल ऑफ यू नो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है? ड्यूरिंग कॉलिजन देयर मस्ट बी एन इंटरनल म्यूचुअल इंपल्स। एक बॉडी वन बॉडी टू को स्ट्राइक करेगा, तो बॉडी वन बॉडी टू के ऊपर एंड बॉडी टू बॉडी वन के ऊपर एक म्यूचुअल फोर्स डालेंगे न्यूटन स्टार लॉ के हिसाब से, एंड दैट इज ए वेरी इंस्टैंटेनियस फोर्स, सो इट विल बी लाइक ए इट इज ए शार्प इंपल्स एक दूसरे के ऊपर डालेंगे उसको, इसलिए मैंने बोला कि इंटरनल म्यूचुअल इंपल्स है ना, internal mutual impulse between the bodies. Let the impulsion 2 by 1, impulsion body 2 by body 1 be J21. Just see the nomenclature. So, and what is the impulsion body 1 by body 2? J1. Obviously, as per the Newton's law, Newton's third law, J12 vector will be minus J21 vector. So, coefficient of restitution is more accurately defined as below. बता देता हूं कैसे डिफाइन करेंगे। Let the two velocity of 2 with respect to 1 before collision be before collision, so u symbol रखेंगे u21 vector, and velocity of 2 with respect to 1 after collision will be v21, obviously symbolically यही लिखेंगे। So component of velocity to 1 along the line of mutual impulse, आप बोले भाई लाइन ऑफ म्यूचुअल इम्पल्स है J21 है J12 भी है, कौन सा लेंगे? मैं ये बोलता हूं कोई भी लेना, मेरा से J21 is defined as, this is the, let me highlight it, आपको ये बहुत ज्यादा मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, the component of V21 along the line of mutual impulse कौन सा म्यूचुअल इंपल्स? लेट से J21 is equal to -1 into coefficient of restitution into the component of U21 along this line of same mutual impulse। अगर इधर J21 लिया तो U21 का भी component along J21 लेना हो गया। तो components of V21 along J21 is equal to -1 into E into component of U21 vector along J21 में, ठीक है। तो थोड़ा वेक्टर का जो कंपोनेंट वन वेक्टर में अदर ये कॉन्सेप्ट अभी काम में आएगा। ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ V21 along J21, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B A बार डॉट B कैप है ना। सो मैं लिखिए कंपोनेंट ऑफ V21 along J21 is V21 bar dot J21 cap. Similarly, -1 into E into U21 vector component along J21 will be dot J21 cap. बताओ, ये आपका बेसिक वेक्टर में पढ़े होंगे, मैं ज्यादा उसके ऊपर अपन टाइम नहीं लूंगा। तो कोई भी यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं दोनों साइड में, और मैग्नीट्यूड को तो हम दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, वेक्टर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अवश्य कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो कैंसिलिंग द स्केलर J21 फ्रॉम बोथ साइड, क्या मिला भाई आपको फाइनली? V21 बार डॉट J21 बार ना इज इक्वल टू -1 कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इनटू U21 बार डॉट J21, ठीक है। यह बस काम खत्म हो गया बार। J21 क्या है? Impulse on 2 by 1 means that is the change of momentum of 2. Impulse on 2 means that is change of momentum of 2. Change of linear momentum to कितना होता? Final momentum m2 v2, initial momentum था before collision m2 u2, तो इसका डिफरेंस। So J21 is m2 v2 minus m2 into v2 minus u2, m2 कॉमन के बाद क्या है? स्केलर है, कॉमन ले लेंगे, तभी मैं तो इधर एक्चुअली में m2 लिखना चाहता हूं, कंपोनेंट ऑफ
ये जो इक्वेशन मैंने लिखा उसी को मैं लिखता हूँ। ये वाला जो है V21 क्या है, V2 माइनस V1। J21 क्या है, M2 इंटू V2 माइनस U2 -1 E। U21 क्या है, U2 माइनस U1। J21 क्या है, M2 इंटू V2 माइनस U2। आप पूछोगे M2 क्यों नहीं लिखा, M2 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। छोड़ो यार, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है ना। तो अभी आ गया ये आपका बेसिक इक्वेशन, बेसिक एक्सप्रेशन आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इन मोर जनरल जनरल डिस्क्रिप्शन आपका आ गया, जनरल डेफिनेशन यू कैन सी। So instead of J21 both side, we can also write J12 on both side. I told you earlier, J21 J12 लिख दो, J12 इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेंगे अभी। ये देखो, एक पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 2 kg moves on a frictionless horizontal surface। पार्टिकल का मास 2 kg, it has velocity of 3 I cap plus 4 j cap मीटर पर सेकेंड। इसको वेक्टर फॉर्म में दिया u1 बार, मैं लिख देता हूँ u1 बार, उसको u1 बार ही बोलते, ठीक है ना। It collides with another stationary particle, मतलब u2 जो है 0 है, बट उसका मास है 3 kg, तो स्टेशनरी पार्टिकल है। आफ्टर collision this 2 kg particle moves with a new velocity, कितना है, I cap minus j cap। वो हो जाएगा v1, v1 हो जाएगा I cap minus आफ्टर 1 मीन्स पार्टिकल 1। एंड मैं ये लिख दिया कि assuming the conditions of linear momentum conservation are satisfied। क्यों लिखा है स्टेटमेंट, क्योंकि मैं यह बोल देना चाहता हूं कि भाई ड्यूरिंग कॉलिजन कोई एक्सटर्नल फाइनाइट इंपल्स नहीं काम करे। अगर एक्सटर्नल फाइनाइट इंपल्स काम करेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, और V2 हम नहीं निकाल सकते। मेरे को V2 चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए V2, U2 तो 0 है लेकिन V2 चाहिए कि एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। am I क्लियर। तो मैंने V2 निकाल दिया। कैसे, क्या किया मैंने, अप्लाई दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम दोनों साइड। इनिशियल बिफोर कॉलिजन की लिनियर मोमेंटम क्या था, 2 इंटू 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, 2 इंटू I कैप माइनस j कैप प्लस 3 इंटू V2। V2 तो मैं नहीं जानता हूँ, अभी निकल जाएगा। V2 आ गया, मैं इसको ट्रांसफर कर दिया इधर, ये 4/3 I कैप प्लस 10/3 j कैप आ गया, ठीक है ना। बस खत्म हो गया। आप समझ में आ रही है कि ये सब सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, मोमेंटम कंजर्व किया, V2 निकल दिया। तो मेरे को चाहिए तीन, जो वेलोसिटी डिफरेंस है, V2 माइनस V1, ये आ गया। V2 माइनस V1 कर दिया, V2 है। V1 आपको मैं, क्या था V1, आई कैप माइनस जे कैप, सो V2 माइनस V1 हो जाएगा, आ गया ये। V2 माइनस U2 तो आप जानते हो 0 था, सो सिंपली जो V2 माइनस U2 होगा V2, ये हो जाएगा V2। U2 माइनस U1 क्या था बोल, -3 I क्या -4 j क्या, ये हो जाएगा, क्योंकि U2 तो 0 ही था। बस उसको डाल दो, फिर इक्वेशन 2 को लेके इस सब चीज डाल दो इसमें, क्या होगा ये, V2 माइनस V1 दिस वन डॉट V2 माइनस U2 दिस वन इज इक्वल टू -1 E टाइम्स U2 माइनस U1 डॉट V2 माइनस U2। U2 माइनस U1 है, V2 माइनस U2। ब्रैकेट खोलो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, मेरे सबसे इजी लगता है डॉट प्रोडक्ट निकालना। 4/9 130/9 -1 E a -4 -40/3, so this is minus minus plus, so 52/3, so E कितना होगा वो, 67/78, almost close to 0.86। ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर जो कॉलिजन प्रोसेस। इसमें कोई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने फाइंड नहीं किया। दिस इज मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ श्योर। समझ में आ रही है आपको, बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस कर लो, ऐसा क्वेश्चन आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट करेंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर, यकीन के साथ बोलता हूँ मैं।
ठीक है, ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फिर मैं आऊंगा। सारे गैप्स जो होगा आपका दिमाग में जो है, मेरे हिसाब से जो गैप्स होंगे, सारे गैप्स को निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए उतना, फिर मिलते हैं। आपके लिए मैं लेके आऊंगा और मोर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू क्लैरिफाई योर gaps in understanding. Thank you all.